the people, as well as through the, you can say, through the nominated, in the process the nominated and the nominated and the appointed members also take part. मूल रूप से तो राष्ट्र विधि के निर्माण में जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जो संसद पहुंचते हैं, उन्हीं के द्वारा राष्ट्र विधियों का निर्माण किया जाता है. So they are the ones who create laws, that is representatives of the people who are elected directly or indirectly by the people. So they enact law in the parliament or in the state legislatures. तो दोनों के बनाने की विधियां, दोनों की रीतियां भी अलग अलग हैं. One is done on the basis of set norms, the other is done, that is the international law is created on the basis of the appeal or the exhortations to the national governments by the United Nations. संयुक्त राष्ट्र में जब कानूनों का निर्माण होता है या जब आपके लिए जनरल असेंबली में जब विचार विमर्श होता है, वोटिंग होती है, तो वहाँ राष्ट्रों से आह्वान किया जाता है कि नहीं, आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, वोट करिए या वोट ना करिए, जो भी आपका निर्णय, लेकिन यू मस्ट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस. बट दिस इज नॉट सो विद रिगार्ड टू द नेशनल इनैक्टमेंट्स ऑफ लॉज, है ना. वहाँ पर नो वन इज अपील टू, है ना. वहाँ उनके राष्ट्रीय दल कह सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं भाई आप इसमें वोटिंग करिए ना करिए, लेकिन एक आम जनता से आह्वान इस प्रकार का नहीं किया जाता. देन विद रिगार्ड टू द टेन्योर ऑफ दीज लॉज, अर्थात दोनों प्रकार के कानूनों की हम कह लें कि कार्यकाल कितना होता है. Now, so far as the tenure of both kinds of laws is concerned, national laws could be created, could be enacted, it could be amended, as well as it could be deleted or scrapped by the parliaments. संसदों को यह अधिकार है कि वो नए कानून बनाए, जो वर्तमान में कानून है उसमें संशोधन कर दे, या उन कानूनों को पूर्णतया से रद्द कर दे. दिस इज द अथॉरिटी दैट रेस्ट विद द नेशनल पार्लियामेंट्स, दैट द पार्लियामेंट्स of various nations, they have the authority to create laws, to amend laws, and to you can say delete laws or scrap the laws. Here the glaring example, the golden example is Article 370. अनुच्छेद 370 को पिछले अगस्त में 5 अगस्त को सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया. This Article 370 was scrapped from the statute books of India. भारत की कानून की किताब में से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया. So this is the power of the national parliaments, or we can say the municipal laws. The municipal laws, they have the power to remove any law, or to enact any law, or to amend any law. National governments, they have this power. Whereas with regard to the international law, no single government can neither create a law, nor can it amend a law, and nor can it delete an international law, scrap an international law. It is again the United Nations, that is in today's world, it is a global body which has the sole authority to decide which laws have to be created or need to be created, what are those existing laws that need a kind of amendment, and if any laws are to be diluted or to be scrapped, again it will be decided by the United Nations on the basis of consensus that is arrived at in the General Assembly. तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये आज निर्धारित किया जाता है, क्योंकि यही आज के संदर्भ में एक वैश्विक संस्था है जो डिसाइड करेगी कौन से नए कानून बनेंगे, या नए कौन से पुराने कानून हटाए जाएंगे, या जो वर्तमान में कानून है उन्हें किस प्रकार से संशोधित किया जाएगा. साथ ही साथ जो मल्टीलैटरल बॉडीज़ होती हैं, जैसे हमने कहा कि यूरोपियन यूनियन, या जैसे सार्क कंट्रीज़ होती हैं,
सार्क कंट्रीज है, आसियान है, नाटो है, दीज आर मल्टीलैटरल बॉडीज, अर्थात जहाँ पर एक ही संगठन में बहुत सारे सदस्य हैं. इफ दे डिसाइड टू क्रिएट एनी लॉज then they can do so. If they want to scrap any law, again they are empowered to do, or if they want to amend, then again they have the right to go ahead with this kind of change. तो इसलिए वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विधि में जो विधियों के निर्माण की प्रक्रिया है, उसको हटाने की प्रक्रिया या संशोधन की प्रक्रिया है, वो भिन्न है, अंतर्राष्ट्रीय विधि में भिन्न है और राष्ट्रीय विधियों से अलग है. तो राष्ट्रीय विधि में सरकारें, जो राष्ट्र सरकारें हैं, नेशनल गवर्नमेंट से, दे हैव द सोल अथॉरिटी टू डिसाइड अबाउट द एग्जिस्टेंस और अबाउट द रिमूवल ऑफ द लॉज. बट दिस इज नॉट सो विद द इंटरनेशनल लॉ. इसलिए इन चीज़ों को इंटरनेशनल लॉ में दूसरे प्रकार से देखा जाता है. सो अगेन दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल लॉ एंड द इंटरनेशनल लॉ. तो इस तरह से हम कहेंगे ओपेनहीम ने 3-4 आधारों पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून के मध्य कुछ समानताएं बताई हैं और कुछ असमानताएं बताई हैं. तो ये तो हो गई ये बातें, है ना. अब इसके बाद दूसरा विषय ये आता है कि ये तो अभी अंतर के बारे में बात किया. नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द म्यूनिसिपल लॉ एंड द इंटरनेशनल लॉ. अब अगली बात ये आ जाती है कि राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय विधि के मध्य संबंध क्या है ना. ये तो लार्जली दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ लॉज. नाउ इफ वन इज आस्क्ड, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ लॉज? क्या राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय विधि में कोई संबंध है? सो व्हाट आर द थ्योरीज दैट गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन द टू सेट्स ऑफ लॉज? वो कौन से सिद्धांत हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि के मध्य संबंधों का निर्धारण करते हैं? वो कौन से सिद्धांत हैं? सो द फर्स्ट थ्योरी इज नोन बाय द नेम ऑफ मोनिस्टिक थ्योरी. मोनिस्टिक थ्योरी अर्थात एकत्ववादी सिद्धांत. मोनिस्टिक थ्योरी. नाउ व्हाट इज दिस मोनिस्टिक थ्योरी? एकत्ववादी सिद्धांत. जैसा नाम ही बता रहा है, एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति. दैट इज देयर इज ओनली वन गॉड एंड नो अदर अथॉरिटी एग्जिस्ट. अगर हम इसको ऑर्डिनरी भाषा में यानी सामान्य भाषा में बोलें, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई और नहीं है. एक ही सत्ता है, दूसरी कोई सत्ता नहीं होती है. और इसी तरह से एक ही कानून है, दूसरा कोई कानून नहीं होता है. देयर इज बट ओनली वन लॉ. There are no multiplicity of laws. There are no multitudes of laws. So monistic theory says there is only one and only one law. And that one law is the real law. केवल एक ही प्रकार का कानून होता है. वास्तव में एक ही विधि है इस पूरी दुनिया में, यानी पूरी व्यवस्था में एक प्रकार की ही विधि है. There is only one type of law in this system of the world. इस वैश्विक व्यवस्था में, इस प्रकृति में एक ही प्रकार की विधि होती है. यानी कहने का तात्पर्य क्या है? मनुष्य एक ही प्रकार का होता है, ईश्वर भी एक ही प्रकार का है ना. अधिकांश लोग क्या कहते हैं? वी हैव ओनली वन गॉड. भले ही कुछ ऐसे रिलीजन्स हैं जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ गॉड्स में या डिविनिटीज में विश्वास करते हैं. इसीलिए हमने कहा कि अहम ब्रह्म, इसीलिए कहा गया एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति. देयर इज ओनली वन गॉड, देयर आर नो टू गॉड्स. सेंट ऑगस्टीन की पुस्तक थी द सिटी ऑफ टू गॉड्स. सेंट ऑगस्टाइन जो एक बहुत बड़ा मध्यकाल का चर्च विचारक था, ही वॉज अ चर्च स्कॉलर ऑफ द मिडीवल टाइम्स. सेंट ऑगस्टीन, ही रोट द बुक डी सिविटास डाई. दैट इज द सिटी ऑफ टू गॉड्स, दो ईश्वरों का नगर. और वो कहता है कि यद्यपि हम दो प्रकार के ईश्वर के नगर हम कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में एक ही ईश्वर होता है. ही सेज द वन सिटी ऑफ गॉड इज द सिटी इन विच वी लिव. दैट इज दिस अर्थली सिटी इज ऑल्सो, ही सेज, इट इज अ सिटी ऑफ द गॉड.
हम जिस धरातल पे रह रहे हैं, हम जिस भूमि पे रह रहे हैं, वो ईश्वरीय राज्य है, वो है ईश्वर की कृति है, ईश्वर की ही देन है। एंड द अदर सिटी इज द सिटी ऑफ द गॉड। दूसरा राज्य कौन सा है? जो ईश्वर का राज्य है, दैट इज द हेवेंस, स्वर्ग है ना। और अभी वर्ड नहीं आ रहा, याद आ रहा है मुझे। इन उर्दू इट इज कॉल्ड जहन्नुम, यानी नरक को हम जहन्नुम कहते हैं, है ना। और जो स्वर्ग है या हेवेंस है, एट द मोमेंट आई एम अनेबल टू रिकॉल व्हाट हेवेंस इज कॉल्ड इन उर्दू। लेकिन जो 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 सेंट ऑगस्टीन कह रहा है, द सिटी ऑफ टू गॉड्स, कहता है वास्तविक रूप से तो एक ही ईश्वर का नगर है, दैट इज द हेवनली सिटी, दैट इज द अबोर्ड ऑफ द गॉड, ईश्वर का राज्य, दैट इज वेयर वी रीच आफ्टर आवर डेथ्स, जहाँ पर हम अपनी मृत्यु के पश्चात पहुँचेंगे, वो असली ईश्वर का राज्य होगा। ये भी ईश्वर की कृति है। द अर्थ वी आर लिविंग, द अर्थ वी आर लिविंग ऑन, द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, दिस वर्ल्ड, दिस अर्थ and its surroundings again, they have all been created by the God, St. Augustine says. But this is not an independent city of God, rather it is the extension of the city, of the real city of the God. जो वास्तव में ईश्वर का जो राज्य है, जो हेवेंस है, जो स्वर्ग है, उसी स्वर्ग का ये एक एक्सटेंशन है, एक विस्तारित ये शहर है। इसीलिए हम कहते हैं ना, हमें पृथ्वी पर ही स्वर्ग को बनाना चाहिए। वी शुड ट्राई टू क्रिएट हेवन ऑन अर्थ, दिस इज अ यूजुअल सेइंग। इतना अच्छा अपने शहर को, अपने देश को, अपने समाज को इतना अच्छा आप बना लीजिए कि आपको स्वर्ग की कल्पना ना करनी पड़ी। अभी तो जनरली वी हैव अ टेंडेंसी टू जनरली थिंक अबाउट, टू इमेजिन this is the heaven, how the heavens would be, generally we try to imagine. But intellectuals, they say, wise men say that it is just a matter of conjecture, you must try to create heavens on the earth itself, इतना अच्छा आपका आचरण हो, व्यवहार हो। इसलिए जो मोनिस्टिक थ्योरी है, monistic theory believes in the existence of only one kind of law or one set of law. एकत्ववादी जो सिद्धांत है वो केवल एक ही प्रकार के कानून में आस्था रखता है। Though we can define law, we can categorize laws into various types. यद्यपि हम कानून को बहुत विभिन्न प्रकार से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, but ultimately at best they will be called as the offshoots of the law, not the various kinds of laws. एकत्ववादी सिद्धांत कहता है आप चाहे चर्च मेड लॉ के बारे में बात करें, चाहे डिवाइन लॉ के बारे में बात करें, चाहे नेचुरल लॉ के बारे में बात करें, चाहे पॉजिटिव लॉ के बारे में बात करें, these are the various manifestations of that one supreme universal law. सेंट थॉमस इक्विनास ने तो लॉज को कैटेगराइज किया, क्लासिफाई किया है, बट ही सेज दैट अल्टीमेटली देयर इज ओनली वन लॉ एंड दैट इज अ नेचुरल लॉ। एक ही प्रकार का कानून है और वो है प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक विधि। और प्राकृतिक विधि क्या है? इट इज अ लॉ, इट इज अ नेचुरल लॉ दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय द गॉड। और इसीलिए जो गॉड मेड लॉ है, यानी जो नेचुरल लॉ है, उसी का ही अलग अलग स्वरूप हैं। जो चर्च मेड लॉ है, जो मॉरल लॉ है, रिलीजियस लॉ है ना, और भी अन्य प्रकार के जो लॉज हो सकते हैं, दे आर ऑल मैनिफेस्टेशंस ऑफ दैट वन सुप्रीम यूनिवर्सल लॉ। सो द मोनिस्टिक स्कॉलर्स होल्ड कि दैट लॉज कैनॉट बी
cannot be divided into various parts, although there can be various categories, but the law cannot be butchered into various small kinds of laws. And they say that whether you say it is a municipal law or whether you call it international law, they are the two sides of the same coin. They are the two sides of the same universal supreme law. अर्थात एक ही प्रकार के कानून के वो दो अलग अलग पहलू हैं, एक ही सिक्के के वो दो पहलू हैं. Just like a coin, you have two sides, heads and the tail. So in the same way, national law, that is a municipal law, international law, they are the two sides of the same kind of law. So there is no quintessential difference between the municipal law and the international law. And they say, who are the exponents, who are the supporters? Supporters are Durkheim. Number one, Durkheim. Kunz, K-U-N-J-Z. Kunz, K-U-N-Z. Kunz. Krebe, K-R-A-B-B-E. Krebe, K-R-A-B-B-E. Krebe. Wadros, W-A-D-R-O-S-S. W-A-D-R-O-S-S. Wadros. So these are the scholars who hold that basically it is only one kind of law. Though you may call it by the name of municipal law or international law, but both have the same effect. Now the important point here to be noted is that these advocates say that both kinds of laws, they have the same impact, they have the same effect. That amounts to saying that while the municipal law is binding, while it is mandatory, while it is punitive in character, international law would also have the same kind of character. यानी अभी ओपेनहाइम के बारे में जो हमने आपको बताया कि राष्ट्र विधि तो बाध्यकारी होती है, आवश्यक रूप से लागू करी जाती हैं और उनके उल्लंघन होने पर व्यक्ति को दंड दिया जाता है, किंतु ये अंतर्राष्ट्रीय विधि पर लागू नहीं होती ये बात. ये ओपेनहाइम ने ये कहा जो हमने आपको बताया अभी. But the supporters of the monistic theory, they do not believe in this concept. उनका ये मानना है, they hold that the municipal law, undoubtedly it is a binding law. It has the effect of punishing the violators. It is to be compulsorily obeyed and followed by the people. These are the characteristics of a municipal law. And at the same time, international law also is compulsory, it is binding, and it could be made punitive as well. It has the element of a punitive law. Now, how do these people say that international law is also binding, it is also punitive in character? So the logic that they give is that the international law, that the subjects of international law are the states. What kind of logic they give? They say the subjects of international law are the states. अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय राज्य हैं, ये हम आपको पहले बता चुके हैं. While I was talking to you about a few lectures back about the subjects of the international law, जहाँ पर हमने आपको बताया था राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं, व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय अब बन गए हैं, और तीसरा क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं आज के समय में. बट ओरिजिनली और ट्रेडिशनली it were only the states and the states that were considered as the subjects of the state. पारंपरिक रूप से और मूल रूप से तो केवल राज्य को ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय माना गया है. ओपेनहाइम ऐसे विचारकों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा राज्यों को केवल ही अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय बनाया गया है. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम it is
the international organizations as well as now the people both are now considered to be as the subjects of the international law. तो इसलिए यहाँ पर जब बता रहे हैं मोनेस्टिक सॉवरेंटी, मोनेस्टिक थ्योरी के द्वारा कि मोनेस्टिक्स मानते हैं, एकत्ववादी ये मानते हैं कि यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय विधि का टच का उनका संपर्क प्रत्यक्ष रूप से जनता से तो नहीं होता है, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से दे आर बाइंडिंग ऑन द पीपल ऑफ द कंट्री. हाउ? लॉजिक इज दैट द सब्जेक्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ ऑफ द स्टेट्स, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय राज्य हैं. हमने कहा पारंपरिक रूप से राज्यों को ही अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय माना गया है और इसलिए राज्य जब अंतर्राष्ट्रीय विधि को स्वीकार करते हैं अपने यहाँ, अपने संविधानों में या अपने राजनीतिक व्यवस्था में, जब अंतर्राष्ट्रीय कानून को स्वीकार कर लिया जाता है तो इसका तात्पर्य है कि अब वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने के लिए कानून बनाएंगे, बाध्यकारी कानून बनाएंगे जो जनता पर फिर बाध्यकारी रूप से लागू किया जाएगा. दैट इज इंटरनेशनल लॉ. Since it is a part and parcel of the state, since states are the subjects of the international law, therefore the states would borrow international law or they would try to implement the international law. And when they implement the international law, they will have to make it compulsory for their implementation. तो अर्थात मोनिस्टिक जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि डायरेक्टली इंटरनेशनल लॉ दे आर नॉट in contact with the people of the country. It is the states that are the main concern. They are the main issues of concern for the international law states. But indirectly, international law becomes applicable for the individuals as well. It becomes relevant for the individuals as well because international law is incorporated by the states in their constitutions. राज्यों के द्वारा अपने संविधानों में अंतर्राष्ट्रीय कानून को स्वीकार किया जाता है और एक बार स्वीकार कर लेने के बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू भी किया जाता है. सो दिस इज हाउ इंटरनेशनल लॉ बिकम्स कंपल्सरी और मैंडेटरी when they are incorporated by the when they are incorporated in the national constitutions or in the municipal laws of the country, then they become enforceable. तब उनको लागू किया जाना अनिवार्य हो जाता है. And in that case, if the people reject the international law, if they disobey international law, then the governments will take appropriate action to punish the people, and it will take initiative to implement those laws. है ना? So this is how the monastics try to explain that don't think that it is only the municipal law that is enforceable, rather it is an international law also that has the same effect of becoming punitive in character, of becoming legally binding once they are accepted by the municipal laws of the country. Isliye they say that both reinforce each other. Both the national laws, both the municipal law and the international law, both are supplementary and complementary to each other. दोनों ये कानून एक दूसरे के पूरक हैं और संपूरक हैं. दोनों अलग अलग नहीं है. Both do not have separate agenda. Their objectives, their issues, their aims, their vision, both are almost same. अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधियों का उद्देश्य, उनकी आगे की सोच, उनका लक्ष्य, दोनों का लगभग एक समान है. एक समान से तात्पर्य क्या है? Both the sets of laws, they try to enrich the lives of the people. Both are concerned with the welfare of the people. Whether it is the municipal law or whether it is the international law, both are concerned with the humanity. दोनों ही प्रकार के कानून मानवता से संबंध रखते हैं. इसलिए both laws they become complementary and supplementary to each other. ये दोनों कानून एक दूसरे के पूरक और संपूरक बन जाते हैं. So this is the case.
This is the, I mean, argument of the monastic theory of monastic supporters of the monastic theory. अब देखिए इसकी आलोचना है, there is some criticism also of this kind of argument forwarded by the monastic supporters or advocates. आलोचना यह है कि not to think that both laws are virtually same, or both laws virtually they have the same objective, they have the same vision. It is bit stretching too far. This kind of an argument, इस प्रकार के तर्क को बहुत ज़्यादा दूर तक ले जाने वाली बात हो गई. It is true that both the municipal law and international law are concerned with the welfare, with the general happiness of the people, but to say that international law becomes enforceable, it becomes implementable by the municipal, under the municipal laws, it is bit, I mean, saying too much. It is simply too much to say that international law, they are, I mean, very much akin to the national laws or municipal laws. नहीं, दोनों में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर भी है. And perhaps this vast difference has sought to be forgotten by the scholars of the monastic theory. इस सिद्धांत के जो समर्थक है संभवतः इस अंतर को भूल रहे हैं या भूल गए हैं कि दोनों के उद्देश्य में भी अंतर है. जो राष्ट्रविधि है उसका उद्देश्य है राष्ट्र की जनता के साथ संवाद बनाना, राष्ट्र की जनता के कल्याण की बात सोचना, राष्ट्र की जनता की सुरक्षा और उनके प्रगति के बारे में उचित कदम उठाना, यह राष्ट्र की विधि का उद्देश्य है. जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि का उद्देश्य क्या है? राज्यों की सुरक्षा. राज्य आपस में लड़े भिड़े नहीं, राज्यों में आपस में तनाव ना हो. भारत और चीन के मध्य अगर तनाव हो रहा है, देन इट इज सॉट टू बी सॉल्व्ड अंडर इंटरनेशनल लॉ. बार बार भारत तो अभी तक कहता आया था, संयुक्त राष्ट्र में ही बार बार इस बात को डिमांड करता था, और बायलैटरल मीटिंग्स में भी, मल्टीलैटरल मीटिंग्स में भी, जैसे SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो मल्टीलैटरल बॉडी है, जो 15 देशों का एक समूह है, उसमें भारत बराबर इस बात को कहता आया कि भाई भारत और चीन के मध्य जो विवाद है, इस संगठन को दूर करने का प्रयास करना चाहिए. तो अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो मूल विषय है वो राज्य है, और उसका मूल उद्देश्य है राज्यों के मध्य तनावों को दूर करना. So the basic objective, we can say the basic subject of international law are the states, and the basic objective of the international law is to resolve differences among the states, is to resolve disputes between and among the states. This is sought to be done under international law. So while the international law aims at bringing about tranquility, it aims at bringing about a smooth and a seamless relationship between and among states, the municipal laws, they strive to establish some kind of law and order in the respective countries and to make the lives of the people better. लेकिन मोनेस्टिक थ्योरी के जो समर्थक हैं वो इस अंतर को बहुत हद तक भुला देते हैं, और वो ये कहते हैं कि दोनों में वस्तुतः कोई अंतर नहीं है. इस बात पर वो बल देते हैं. बट द सिग्निफिकेंस, दे हैव द सिग्निफिकेंस. जो मोनेस्टिक सपोर्टर्स बात कर रहे हैं, द एडवोकेट्स ऑफ द मोनेस्टिक थ्योरी, दे आर, यू कैन से, दे आर करेक्ट टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट, दैट बोथ लॉस आर हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस. ये दोनों प्रकार के कानूनों की बहुत बड़ा योगदान है. Though today we call international law as a weak law, or as Holland says that international law is a vanishing point of jurisprudence. आज ही हम लोग कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि एक दुर्बल विधि है, और हॉलैंड ने तो यहाँ तक कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लुप्त होता हुआ बिंदु है. That international law is a vanishing point of jurisprudence. This was said by Holland. But what Monist says, जो इस एकत्ववादी सिद्धांत के समर्थक है, वो गलत नहीं कहते हैं कि राष्ट्रविधि तो महत्वपूर्ण है ही, अंतर्राष्ट्रीय विधि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है.
इसको आप कमज़ोर या आप इसको एक निर्बल विधि ना समझिए, बहुत बड़ी भ्रांति होगी। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय विधि को एक कमज़ोर विधि मानेंगे तो इससे पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में दरार पड़ जाएगी, अराजकता व्याप्त हो जाएगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी और द इंटरनेशनल सिस्टम वुड क्रम्बल under the intense tensions that will arise between and among nations. A kind of anarchy will start prevailing in the global system if you consider international law as a weak law. So the monistic supporters, they are extending a warning also to the international community, to the national leaders, to the government leaders, cautioning them that international law is not to be taken for granted. It is not to be considered as a weak law. It has its own importance, and this importance is no less than that of the municipal law. This is the lasting contribution given by the monastic advocates of this theory. तो इसलिए ये इनका बहुत बड़ा योगदान था, जो एकत्ववादी सिद्धांत के समर्थक हैं। और इसलिए हमें चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि व्हाट इज़ अ मोनिस्टिक थ्योरी, व्हाट आर इट्स कंटेंट्स, यानी इसका कहना क्या है, इसका विषय वस्तु क्या है, what are the criticisms that are there against it, and what is the significance of the monistic theory. So you must have a fair idea or a clear idea about the monistic theory that tries to establish a relationship between the municipal law and the international law, right? तो आज की बात I would like to stop here. I would like to call it a day. I have been speaking now for almost 1 hour, है ना? So in my next lecture I will continue with this ongoing topic, and this is only just one of the theories that I have spoken before you. I would be speaking more about other theories in my next lectures. Until then, it's goodbye to you, and you must take special precautions for yourself, because as you know that this COVID-19 is still going on. It's going hammer and tongs, and these days it's expanding as well. So you are supposed to take utmost precautions, the precautions that have been sounded by the government from time to time. So all those precautions you must be taking. तो अपना बहुत ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा आप लोग, और सभी वो सारी वो चीज़ें आप लोग सावधानी बरतिएगा जो सरकार बार बार आप लोग से कह रही है. एंड येस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट एक्सरसाइजिंग एट होम. आपने अपने घरों में व्यायाम करना बिल्कुल ना भूलिएगा. जैसे आप खाना नहीं भूलते हैं, just as you never forget to take food, and you take food at least